ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਅੱਜ 23ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਮਰਵਤ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਥਾਈਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ। ਅਗਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਰਹਿ ਰਹੀ ਬਈ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਐਮਪੀ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਐਮਪੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੀਮਤ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੂ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ 3 ਘੰਟੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਇ ਆਈਆਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ ਸਾਡਾ ਕਿ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪਲ ਪਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੇ। साथियों, बहुत सारे पत्रकार साथी हमसे पूछ भी रहे थे अभी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ डायरेक्शंस आई हैं, उस पे आपका क्या कहना है। तो हमने सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से, अपने अन्य साथियों से, दोनों फोरमों के, उस पे हमने विचार चर्चा करी और हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करना चाह रहे हैं, ये प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। उनकी भावना का हम सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन बड़ी ही विनम्रता के साथ हम हाथ जोड़ के उनसे एक सवाल, एक चीज जानना चाह रहे हैं कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तबीयत बिगड़ क्यों रही है। जब तक हम समस्या की जड़ पे नहीं पहुंचेंगे तब तक समाधान नहीं हो सकता। और मूल सवाल यह है कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का स्वास्थ्य बिगड़ क्यों रहा है। वो इसलिए बिगड़ रहा है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों की सरकारों ने, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार रही हो, तमाम सरकारों ने हमें, हमारे साथ बहुत से वायदे किए, लेकिन वो वायदे आज तक पूरे नहीं हुए। हमारे साथ हमेशा वायदा खिलाफी करी गई। तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा देश के किसानों को ठगा गया, उनके साथ वायदा खिलाफी करी गई। अब तक तो हम सिर्फ ये कहते थे कि एमएसपी गारंटी कानून लागू कराना हम किसानों की मांग है, हम किसान इसकी मांग कर रहे हैं।
हम अब तक तो सिर्फ ये कहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए खुद सिफारिश करी थी कि एमएसपी पे गारंटी कानून बनना चाहिए। लेकिन साथियों, कल जो हमारे संसद के अंदर हुआ, संसद के अंदर जो खेतीबाड़ी के विषय में जो स्थायी समिति बनी हुई है संसद की, जो परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर बनी हुई है, जिसके अध्यक्ष माननीय चरणजीत सिंह चन्नी जी हैं, और उस कमेटी में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के एमपीज हैं और सत्ता पक्ष है, निश्चित तौर पे उसका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है। सर्वदलीय पार्टीज के एमपीओं से बनी हुई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह कह दिया कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। उसमें कोई एक पार्टी की बात नहीं है, तमाम पार्टियों के सांसदों को मिला के जो संसद की कमेटी बनाई गई थी, जो एग्रीकल्चर के ऊपर कमेटी है, उसने भी यह कह दिया कल कि एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए। यानी सड़क पे भी एमएसपी गारंटी कानून की बात चल रही है, संसद में भी एमएसपी गारंटी कानून की बात चल रही है, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार उस विषय में बात ही नहीं करना चाहती। हमें वो तस्वीरें याद हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, तो संसद की बिल्डिंग में एंट्री करने से पहले वो सीढ़ियों के सामने नतमस्तक हो गए थे, पूरा लंबा लेट के दंडवत प्रणाम किया था उन्होंने कहा था कि ये संसद लोकतंत्र की आत्मा है, ये संसद लोकतंत्र का मंदिर है, मैं इस मंदिर में प्रवेश कर रहा हूं, इस लोकतंत्र की आत्मा में मैं प्रवेश कर रहा हूं, इसलिए मैं दंडवत पहले प्रणाम करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज वही लोकतंत्र का मंदिर, आज वही लोकतंत्र की आत्मा बार बार पुकार रही है। कल उस कमेटी ने पूरे संसद की भावना भी रख दी कि एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए। अब सवाल सिर्फ ये बचता है कि क्या हमारी केंद्र सरकार संसद की भावना को स्वीकार करेगी या उसको भी अस्वीकार करेगी। तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट लोगों की, किसानों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, संसद की भावना को ध्यान में रखते हुए कृपा करके हमारी केंद्र सरकार को ये दिशा निर्देश दे कि वो एमएसपी गारंटी कानून समेत किसानों की तमाम मांगों को पूरा करे। यदि किसानों की मांगें पूरी होती हैं तो उसके बाद सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के अनशन करने का कोई अर्थ नहीं रहेगा, और जब तक मांगें पूरी नहीं होती तब तक अपना अनशन जारी रखना सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की और दोनों फोरमों की देश के किसानों के भविष्य के प्रति जिम्मेदारी बनती है। तो देश के किसानों की जिंदगियों को बचाने के लिए यह अनशन शुरू किया गया है और ये पूरी मजबूती से, पूरी ईमानदारी और पूरी ताकत से ये इसी तरीके से जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसान सीधा सानू दस देना अपनी मंगा। मैं सवाल हम बाद में लेंगे, लेकिन आपका इस सवाल का जवाब दे दे, बाकी सवाल हम बाद में लेंगे। हम हाथ जोड़ के एक प्रार्थना कर रहे हैं कि 2015 में हमारे बड़े ही सम्मानित साथी, बहुत सीनियर लीडर सतनाम सिंह बहरू जी ने केस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले को लागू कराने के लिए। और जब केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह पेश हुए और जस्टिस रमन्ना, जस्टिस मुखोपाध्याय की बेंच के सामने कहा कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं कर सकते, हमारा बजट बिगड़ जाएगा। यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट उस समय यह कहता कि नहीं, सरकार किसानों से वादा खिलाफी नहीं कर सकती, जो आपने वादा किया वो पूरा करना पड़ेगा, अगर उस समय जरूरी दिशा निर्देश होते तो शायद आज ये स्थिति ना बनती। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय सरकार, तमाम लोग, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी मांगों को जानते हैं, इसीलिए एक एक पल हमारे लिए बड़ा कीमती है, बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे मुल्क में हर साल 10,000 से अधिक किसान आत्महत्या करते हैं, यानी रोजाना 30 से अधिक किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हर घंटे एक से ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहा है। तो हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटा किसानों के लिए भारी है।
इसीलिए समय और ज्यादा समय व्यर्थ किए बिना अगर माननीय कोर्ट केंद्र सरकार को आदेश दे कि संसद की भावनाओं का स्वीकार, उनका सम्मान कीजिए, उनको स्वीकार कीजिए, किसानों की भावना को स्वीकार कीजिए, सम्मान कीजिए, तो शायद ये स्थिति बेहतर तरीके से हम उसको हैंडल कर सकते हैं। मैं आगे प्रार्थना करूंगा, आदरणीय बलदेव सिंह सिरसा जी हैं, वो बात रखेंगे, उसके अलावा हमारे और साथी रखेंगे, उसके बाद हम सवाल जवाब करेंगे। आदरणीय बलदेव सिंह सिरसा जी। ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ 30 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬੰਦ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਆਉਂਦੀ 30 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੈਕਟ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਐਸਕੇਐਮ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 30 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਜਿਵੇਂ 2020-2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ।